all, welcome back to our channel, The Adorables. So we are back again with another trip and this time we are doing a Bangalore to Pune road trip. Yes. But हम लोग directly Pune नहीं जा रहे. So we are doing Bangalore to Pune road trip via Mulshi. तो मुल्शी एक बहुत ही प्यारी सी जगह है and we are going to stay there. और update देना चाहोगे? So today we are going to do a night halt at Belgaum. So we have booked Fairfield by Marriott in Belgaum. So time काफी late हो गए actually. We plan to start around 4:30 but it's already 6 o'clock. So anyways, let's start. The time showing is 5:33 kilometers. It's showing 3:08 a.m. Yeah. Let's see कितना manage होता है. Okay. So one new development that we have seen, there are no, I think the highway expansion to 6 lane is going on as usual between Bangalore Tumkur, lot of traffic, but due to this highway expansion there are lots of diversions. As you can see, this is one of the diversion. अब तक कितना मिला? I think 4 मिल गया हम लोगों को in between Tumkur and Bangalore and Tumkur. And earlier one में at least traffic नहीं थे, इसमें बहुत ज़्यादा traffic है. So there are diversions now in between Bangalore to Tumkur. This is a new development. तो वी स्टॉप फॉर अ कॉफ़ी ब्रेक. तो जनरली हम लोग घर से ही लाते हैं कॉफ़ी मग, पर इस बार हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था. बिल्कुल भी टाइम नहीं था. दौड़ के निकले, वो भी लेट हो गया था, तो इसलिए वी हैड टू टेक अ कॉफ़ी ब्रेक. ये कुछ कॉफ़ी मिल गया. इतनी भीड़ है रोड पे, राइट? बहुत भीड़ है. टू मच मतलब टू मच ट्रैफिक. ये टोल में तो हम लोग कितना देर तक खड़े रहे अभी. क्या बोले. So as our customary, as we cross Chitradurga, we give an update. So here we are crossing Chitradurga. Time is 9:28. 3.5 घंटा लग गया आज चित्रदुर्ग क्रॉस करते हुए. तो देखते हैं, बहुत भीड़ है रोड में. Let's see what time we reach. So finally, as I can see, the Byadgi flyover is done. This for last 5-6 years I have seen was under construction only. I think it took the longest time. So good to see that ये हो गया. So time is 11:30 p.m. and here we have reached Hubli. So almost कितना 5.5 घंटा लगा. 5.5 घंटा लगा बैंगलोर से हुबली. बैंगलोर से आने में. So it is okay. So now you can see huge constructions going on. I was seeing, I think ये जो आगे का हाईवे है, जो infamous that Hubli Dharwad stretch था of 30 kilometers, which was a 2-lane stretch. I think the work has progressed a lot. हम लोग दिखाएंगे. Let me show you once we reach there. तो जैसे कि दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रेच ऑलमोस्ट हो चुका है. ये वाला भी साइड आप देख सकते हो completely बन चुका है. लेफ्ट साइड भी ऑलमोस्ट बहुत सारा जगह में रेडी है. So looks like in another 2-3 months this should be open. हालांकि there are stretches like this which are still not done. I think 6 months, another 6 months, this should be ready. So time is 12:48 and here we are entering our hotel, Fairfield by Marriott. Let's go in. This is the entrance. So yeah, this is the lobby. How much? 20? Oh my god. बहुत चलना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा चल लो. 21. So 201. एकदम एंड में
Key card in. ये है हमारा रूम, कोजी सा छोटा सा रूम। बस एनीवेज रात को ही रुकना है। It's okay, it's good actually. या इट्स गुड। हाँ, और छोटा सा एक फ्रिज भी दिया हुआ है, दैट्स नाइस। आई थिंक एवरीथिंग इज हियर। टी कॉफी मेकर, डेस्क, वर्क डेस्क। या लेट मी ओपन दिस वन। यहाँ पर भी यू हैव द सेफ्टी लॉकर एंड देन हैंगर, और ये आयरन बोर्ड भी है। पूरा एरिया में लाइट भी दिया। हाँ, पूरा लाइट दिया है। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मिरर है। एंड लाइट्स आर ऑल्सो वेरी नाइस फॉर दिस रूम। इट्स प्रीटी नाइस। ये है बाथरूम। बाथरूम इज नाइस। मिरर है एक लंबा सा, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे मिरर है एक्चुअली। वेरी नाइस। ये वॉश बेसिन है, ये शावर एरिया अलग से दिया हुआ है, दैट्स रियली नाइस। तो दे हैव प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द बाथरूम। हेयर ड्रायर है, शावर कैप, शेविंग किट, वैनिटी किट, डेंटल किट, हैंड एंड बॉडी वॉश, हैंड एंड बॉडी लोशन। यहाँ पे शावर एरिया में भी दे हैव दिस शैम्पू, कंडीशनर, हैंड एंड बॉडी वॉश। सो इट्स प्रीटी नाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। हाँ. तो एक्चुअली हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता ही होगा, इट वाज शोइंग 3:08 AM विल रीच। तो फाइनली वी रीच्ड अराउंड 12:45। 12:50, तो मतलब 6 घंटे 50 मिनट लगा हम लोगों को। सो 6 hours 50 minutes. Let me give a brief route update. As usual, Bangalore to Tumkur was, this time it was horrible traffic. Mind you, before Tumkur the road has become very patchy and with lots of rough spots and potholes. Tumkur till Chitradurga was a bliss. There are a couple of diversions. Yes, Bangalore to Tumkur, lot of diversions, as I have said earlier. Tumkur to Chitradurga, couple of diversions. Post Chitradurga, it was a breeze until Belgaum, except the Hubli-Dharwad bypass. Construction is going on in full swing. It's lot of patchy surface, rough surface, lots of dust also, full of dust. That will take some time. Otherwise, it's a breeze, this route, as usual. So we reached in 6 hours 50 minutes. हाँ, तो हम लोग ने वैसे कुछ ब्रेक नहीं लिया था। हाँ, बस वो छोटा सा कॉफी ब्रेक लिया था, वो भी पार्सल कर लिया था। और डिनर हम लोग पैक करके लाए थे, तो वी जस्ट हैड इट इन द कार ओनली। तो चलो फिर अभी हम लोग फ्रेश होके सोने जाते। गुड नाइट, विल मीट यू टुमारो बिकॉज टुमारो इज अ बिग डे फॉर अस। बाय। हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा day 2 and we just came to have our breakfast. Nice city arrangements outside. Yeah, we are sitting outside. Yes, nice one. Nice one. So this is outside we are sitting. आप लोग चाहो तो अंदर भी बैठ सकते हो, बहुत सारी जगह है बैठने का। and this is really nice. ये हमारा खाना आ गया, मतलब थोड़ा सा। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया पूरी भजी। स्प्रेड अच्छा है। तो पूरी भजी, डोसा, पराठा जो है इन लोगों ने रखा है अपना लाइव काउंटर में। सो यू नीड टू ऑर्डर। हाँ, ये ध्यान रखना है। हाँ, और ये है यहाँ पे मसाला टी का काउंटर। तो अच्छा है। चाय का काउंटर देते हैं। हाँ, मतलब भी मिलेगा शायद, पता नहीं। हाँ, चाय कॉफ़ी का है। तो अच्छा है। चलो पूरी भजी और चाय पियेंगे हम लोग। और ये आ गया है हमारा पूरी सब्जी। तो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट एरिया। So this was their restaurant. Restaurant name is Kawa. कावा। मतलब समझना पड़ेगा क्या। और ये है रिसेप्शन एरिया। तो ये है स्विमिंग पूल लोगों का। मैंने सोचा दिखा दे। दिख रहा है। हाँ, तो ये है मॉर्निंग व्यू ऑफ द होटल।
रात को आए थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इट्स नाइस। ये यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है। एंड दिस इज द पार्किंग एरिया। Time is 9 a.m. Exactly 9 o'clock. 9 o'clock और we just left the hotel. तो यहाँ से जो पुणे का डिस्टेंस है वो है 331 किलोमीटर। Yes. And जो हम लोग का रिजॉर्ट है which is in Mulshi, that is around 366 kilometers. हाँ, तो टाइम वो दिखा पुणे रहा से है हमें जाना पड़ेगा। कितना 7 hours 15 minutes. Yes. So again we'll repeat. We stayed in Belgaum, Fairfield by Marriott Hotel. तो कल हम लोग आए हैं बैंगलोर से It is a and we pretty took nice a halt property. there. Pretty हाँ, it's nice nice. property. Yeah. और हाईवे के ऊपर ही है। हाँ. This is good. So as soon as we come out of Belgaum city, the diversion starts. So as we have seen in our earlier vlogs also, this entire stretch between Belgaum to Pune is getting expanded to 6 lanes. So there are lots of diversions. Time दिखा रहा है हालांकि 7 घंटे, but देखते कितना टाइम लगता है. So we'll give you an update कि how many diversions we have got, if we can keep a count. देखते हैं. We'll keep you all updated. तो एज यूजुअल आप देख सक रहे हो, दिस इज द घाटप्रभा रिवर। ये हमेशा फ्लड्स लाता है हर बारिश में। इनफैक्ट ये रोड जो है आप देख रहे हो आगे में, नया जो हाईवे का अलाइनमेंट हो रहा है ऊपर से कर रहा है, क्योंकि दिस हाईवे एवरी ईयर गेट्स फ्लडेड एंड रिमेन्स क्लोज फॉर 1 or 2 days। तो यू सी फुल वाटर है ना एकदम। दिस इज द घाटप्रभा रिवर। So time हुआ है around 10:40 and we have just now crossed Kolhapur. So it took us how much time? 9 बजे निकले थे, right? 1 hour 40 minutes in to reach Kolhapur. Roads अब तक तो I think I have counted somewhere around 21 diversions. In between the roads are great in 6-lane shape, but diversions are not in great shape. But still ठीक है, you can manage your speed. Let's see. So time हुआ है 11:45 and we are crossing Karad. So what I wanted to show you, you can see that right side flyover. So just from the entrance to Karad, this is continuing. Looks like the entire Karad city will be bypassed using this flyover, which is a good thing because Karad used to have a lot of traffic blocks. देखता हूँ आगे जाके ये continue है कि नहीं है, but looks like. तो टाइम इज 12:30 एंड वी स्टॉप फॉर अ लंच ब्रेक। महाराजा पैलेस, दिस इज ऑफ शिक्षिका मतलब टीचर प्रभा भोसले। तो उनका आई थिंक ये है रेस्टोरेंट, उनके ही हाथों का खाना रहता है यहाँ पे, जो मैंने सुना है। दिस इज इन बोरगांव, अराउंड 10-20 किलोमीटर्स बिफोर सतारा। देखते हैं, हर बार देखते हैं इसको, कभी भी खाए नहीं, पर जाके देखते हैं। ये बाहर भी बैठने का जगह है, काफ़ी सारा स्पेस है एक्चुअली। हम लोग अंदर बैठ रहे हैं, अंदर भी जगह है यहाँ पे। ये है इन लोगों का मेनू, बहुत सारा वैरायटीज़ ऑफ आइटम है। जो फेमस है डोंगरी मटन, तो वो रोनी को ट्राई करना है, पर हमने ये है डोंगरी मटन फुल और हाफ में बोला 480 पीसेस। तो रोनी ने लिया है ये थाली, जो मटन थाली है, जो लिमिटेड वाला है। उसमें डोंगरी मटन लिया है और मैंने चिकन थाली ऑर्डर किया है। यहाँ पे फ़िश थाली है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ। और हमने ऑर्डर किया है पॉम्फ्रेट फ्राई। ये अलग से भी आप चाहो तो सारा आइटम ले सकते हो। तो चलो देखते हैं रोनी के मटन थाली में क्या है। नॉर्मल वाला थाली लिया, स्पेशल में बोले सूखा रहेगा, कीमा रहेगा, अंडा रहेगा, उतना नहीं खा सकते। तो ये मटन सूखा है, ये डोंगरी मटन है, ये मैं नाम भूल गया हूँ, मुझे याद था पहले। कुछ रस्सा, तो ये थोड़ा रसा कर है। तो ये प्लेन वाला लियो, ये भाकरी है।
और ये स्टार्टिंग में ये भी स्टार्टिंग हमें में देके गया था। और ये मीठा है। तो ओके चलो लेट्स ईट। तो ये आ गया मेरा चिकन थाली। तो ये है चिकन का एक आइटम और एक आइटम मैंने तंदूरी रोटी लिया फाइनली एंड राइस वो लोग बाद में देके जाएंगे। और ये आ गया हमारा पॉम्फ्रेट फ्राई। तो चलो अच्छा फीडबैक दे दो मटन का। बहुत अच्छा है, इट्स ऑसम। ये जो मटन सूखा है ना बहुत बढ़िया है। ये जो डोंगरी वाला भी है वेरी नाइस। चलो नाइस। तो हो गया हमारा लंच। तो अच्छा था बट एक करेक्शन है। तो हम लोग को जो लगा 2 चिकन है और 2 मटन है वो नहीं था। जो दिखाई दिया सूखा वो था ग्रेवी जो कि बहुत अच्छा था, मटन एंड चिकन बोथ। और एक जो था जो हम लोग को लगा वो शायद वो ग्रेवी कुछ होगा, वो एक्चुअली रसा था। 2 टाइप का रसा दिया गया था तो वो था। बट ओवरऑल फूड वाज गुड। और एक चीज़ है इन लोगों का जो वॉशरूम है बहुत अच्छा है। बहुत स्पेशियस है, बहुत बड़ा है, वेरी नीट एंड क्लीन। और मुझे सबसे अच्छा लगा जो फीमेल वॉशरूम है वहाँ पे सेंसर था हैंड वॉश के वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा लगा। यू डोंट हैव टू टच एक्चुअली, तो दैट वाज गुड। तो ओवरऑल अच्छा था। तो यहाँ से पुणे जो है 121 किलोमीटर है। तो हम लोग और थोड़ा जाने वाले हैं। हम लोग जाएंगे वहाँ से मुल्शी डैम फर्स्ट विजिट करेंगे जो कि 149 किलोमीटर। क्रॉसिंग सतारा नाउ। सो 10 मिनट लगा जहाँ से हम लोगों ने खाना खाया था महाराजा पैलेस से। सो इट्स टाइम इज़ 1:38। सो येट अनदर 139 किलोमीटर्स फ्रॉम मुल्शी डैम व्यू पॉइंट। लेट्स सी। So time is 2:50 and we reached Pune. So we just now crossed the Katraj tunnel. So almost कितना टाइम में हम लोग 9 बजे से लेके 2:50, बीच में 1 घंटे का ब्रेक। गुड इनफ। तो अभी हम लोग पुणे पहुंचे। मुल्शी डैम इज स्टिल शोइंग अनदर 42 किलोमीटर्स। गिव यू एन अपडेट नेक्स्ट। लेट्स सी। रिसॉर्ट में और ये बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। राइट में पूरा मुल्शी रिवर दिख रहा है। और मुल्शी रिवर क्या है? मूला रिवर। मूला रिवर, हाँ हाँ। मुल्शी तो डैम है। डैम है। तो ये आई थिंक यहाँ से वी हैव टू टेक द लेफ्ट, देन वी विल रीच द रिजॉर्ट। दिस इज द रोड। ये शॉर्टकट है, ये क्या है? मतलब कि कार ये दिस इट। We reached Yes. Blue Bella Resort. Yeah. So time is 4:34. यही ये लोग का पार्किंग का प्लेस। तो हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दिया है। ये है इन लोगों का टेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंट है। चलो पहले रिसेप्शन जाते हैं फिर देखते हैं क्या है। ये सब अलग-अलग टेंट्स है। हाँ। तो here is yes. So this is the first time in India we are having this experience Yep. of staying in this tent. Glamping. This term is called as glamping. So this ends our part 1 vlog. Stay tuned with us to see in our next vlog where we'll be showing you our beautiful tent, our glamping experience and lots more. Till then, bye, take care, do like our video and subscribe to our channel.